Hello everyone. Now let's see certain important factual details about cell. We have seen the overview of a cell. What are the common features to all types of cells? Plasma membrane, cytoplasm, nucleus. Then certain cell organelles may be present. Ribosomes are also the general feature. So that are the general features, basic features of cell. We have done with that. Now there is a short discussion given in NCERT about cell sizes and cell shapes. So cells greatly vary in their shapes, they also vary in their sizes. ऐसा नहीं है कि बॉडी के सारे सेल्स एक ही शेप के रहेंगे, सभी का शेप सर्कुलर होगा, सभी के सभी वर्टिकल कॉलमनर होंगे. दे हैव डिफरेंट शेप्स. Similarly, due to differences in their shapes, they will have different sizes. What is the size of a typical cell? If someone come to ask, तो आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं, the cell size vary according to their shapes and their functions. अगर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसके अंदर का कंटेंट बदल जाएगा, उसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे और बदल जाएंगे इन द सेंस उनका नंबर, उनका अमाउंट वगैरह चेंज होगा. एंड देयरफॉर द शेप विल बी डिफरेंट एंड द साइज विल डिफर. Okay, so let us see certain shapes and the certain sizes of cells that can be asked in the form of small MCQs, one liners, ऐसे कुछ आपको बन सकते. मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है कुछ सेल्स का, अलग अलग जो आपको सिलेबस में जगह जगह पे मिलेंगी कुछ चीजें. मैंने क्या किया, कलेक्टिवली यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट यहाँ से रिलेवेंट है, प्लस इसकी लिंक दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे. नीट में अपने को इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक चैप्टर का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, वहां से उसकी कुछ लाइन उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. तो इसके लिए लिंकेज के हिसाब से देखते हुए मैंने क्या किया हुआ है, सभी अलग अलग जो शेप्स और साइजेस है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हुआ. यू हैव टू जस्ट नोट देम डाउन. आपको लिख कर ले लेना क्योंकि ये एक जगह पर आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, या बिखरे हुए हैं. आपको एक जगह पर कंपाइल करके मैं दे रहा हूँ. सो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. We are now going to see various sizes and shapes of cells. First of all, size. When it comes to size, we use some units to measure the size. For example, you measure the distance size by measuring in either in millimeter or in centimeter or in meters. So that will become the size. उसकी length होंगी, उसकी breadth होंगी, उसका diameter होगा, उसकी height होगी, whatever be the size, it will be measured in terms of some unit. So since cells are very small in size, they are microscopic generally. So such microscopic cells cannot be visualized under normal circumstances with naked eyes. So you have to use certain special techniques to visualize the cells. We use microscopes, simple or compound microscope. For higher resolution, we use electron microscope. These are various techniques that are used to visualize the cells. Because cells are very minute, they are tiny, even they are so small that they cannot be easily visualized with our naked eyes. We need certain higher techniques to visualize. We zoom their sizes and then we can study the cell, then we can see that cell. So therefore size is very small, hence it cannot be easily measured in terms of millimeters. सेंटीमीटर्स की तो बात ही नहीं आती, मीटर्स की तो बात ही नहीं आती, मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं सेल्स. तो अपन जनरली मिलीमीटर से भी जो छोटे यूनिट्स है, सच एज माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स अपन यूज करेंगे यहाँ पे. माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. सो दीज यूनिट्स आर गिवन ऑन बैक साइड ऑफ योर लॉग टेबल. लॉग बुक जो है आपकी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जो यूज करने वाले नॉनइट की लॉग बुक, उसके पीछे आपको ये यूनिट्स दिए हुए. सो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻�6, नैनो मीन्स 10⁻�9 और एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10. मतलब साइज इतना छोटा होता है. 10⁻6 मतलब 0.000001, इतना छोटा साइज रहेगा. मतलब 0 पॉइंट लगा के 0.00001, इतना छोटा साइज रहेगा उस सेल का. ओके, इतने मीटर रहेगा. सो ये होगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6, मतलब इतने 10. इसको अगर 1 शिफ्ट करते गए आपने, इट विल बिकम 10⁻6 मीटर्स. इतना छोटा साइज है. सिमिलरली और 10⁻9 में और इसको आपको लेकर जाना पड़ेगा 8 डिजिट्स ये, और 9th नंबर पे 1, सॉरी लाइक दिस. तो ये 10⁻9 10 में होगा और एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और 1. इतना छोटा साइज हो जाएगा. जस्ट लाइक अ रे ऑफ लाइट, इतनी छोटी होती है वो लाइट रेज वगैरह. एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं उसको, एंगस्ट्रॉम यूनिट में.
सो इट विल बी 10⁻⁻10। तो आपको ये यूनिट्स पता होने चाहिए। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶, नैनोमीटर -9 और एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। एखादा एमसीक्यू मिल गया। अभी तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन टाइम के साथ आपको पूरे सिलेबस में इतनी बार आएंगे ये चीजें याद हो जाती, बार बार कोई इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो वी विल मेजर द सेल्स इन दीज माइक्रोमीटर्स, नैनोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ओके, आई हैव एनलिस्टेड सर्टेन सेल्स, सम सेल्स एंड देयर साइजेस। मैंने स्टार्ट किया वायरसेस से। वायरसेस आर एक्चुअली असेल्युलर, दे आर नॉन लिविंग। लिविंग उनके बारे में जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इट इन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बाद में बात करेंगे। लेकिन वायरसेस भी यहाँ पे मैटर करते हैं बिकॉज दे आर पैथोजेनिक, दे कॉज अस डिसीजेस। ओके, दे बिकम लिविंग विद इन आवर बॉडी, हेंस वी हैव टू कंसीडर देयर साइज ऑल्सो। सो जनरली बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है, वायरस का साइज सबसे छोटा होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। 0.02 से 0.2 इंटू 10⁶ मीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁶ मीटर। इतने छोटे वायरसेस है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया का ग्रुप जो है, सो इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। देखो वायरस 0.1 भी नहीं है, 0.1 पकड़े तो उससे 10 गुना बड़े बैक्टीरिया हो गए, 10 टाइम्स लार्जर बैक्टीरिया हो। समझ में आ रहा? तो वायरस से 10 गुना बड़े, मल्टीप्लाई बाय 10 करो इसको, इट विल बिकम 1 माइक्रोमीटर। ओके, 10 गुना 100 गुना बड़े बैक्टीरिया रहते, तो वो प्रोकैरियोट्स का जनरल साइज है। सिमिलरली यूकैरियोट्स मतलब अपने सेल्स या फिर प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, सो दीस सेल्स आर अगेन 10 टाइम्स लार्जर देन बैक्टीरिया। अपने सेल्स और बड़े हो गए, 10 टाइम्स डबल होते, अपने बैक्टीरिया से डबल साइज के रहते, मल्टीपल और ज्यादा बड़े हो सकते, 10 to 20 माइक्रोमीटर एंड मोर, ज्यादा बड़े भी हो सकते। सिमिलरली ह्यूमन सेल्स का यहाँ पे डिस्कशन है। लेट्स सी वन बाय वन वायरसेस देखते हैं। वायरसेस में स्मॉलेस्ट नोन वायरस है फुट एंड माउथ वायरस। वायरसेस में स्मॉलेस्ट उसका साइज है 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, मतलब 0.1 के आसपास आता है उसका साइज, बहुत छोटा वायरस है। स्मॉलेस्ट नोन वायरस इज फुट एंड माउथ वायरस। याद रखो एमसीक्यू कैसे, दिस इज द स्मॉलेस्ट वायरस, दिस इज लार्जेस्ट वायरस। बीटल येलो वायरस इज द लार्जेस्ट नोन वायरस, साइज इसका सबसे बड़ा रहता है बीटल येलो वायरस। साइज इज अबाउट 1250 बाय 40 नैनोमीटर, मतलब उसका जो डायमीटर है 1250 बाय 40 उसके नैनोमीटर उसकी डायमेंशंस रहेंगे। येलो बीटल वायरस, दिस इज लार्जेस्ट नोन वायरस। ओके, गूगल करके आप इनके डायग्राम्स भी देख सकते हैं, बट नो नीड टू डू दैट बिकॉज अपने को सिर्फ नाम और उनका साइज याद रखना है थोड़ा बहुत। सबसे छोटे वायरस फुट एंड माउथ वायरस, सबसे बड़े वायरस बीटल येलो वायरस। ओके, सिमिलरली अगर स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स में आपको एग्जांपल याद रखना है PPLO, ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्म। व्हाट इज PPLO? PPLO stands for प्लूरो pneumonia like organisms. Pluro pneumonia like organisms. Pluro pneumonia like organisms, सबके इनिशियल्स लिया गया देखो। प्लूरो मतलब मल्टीपल, उनका कुछ शेप साइज फिक्स नहीं रहता। निमोनिया लाइक, निमोनिया करते थे पहले, मानते थे उनसे निमोनिया होता। लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया करने वाले जो निमोनी रहते, डिप्लोकॉकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, उनके जैसे दिखते थे, इसके लिए उनको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ऐसा नाम दिया। वन थिंग इज दैट दे लैक सेल वॉल्स, दे आर जस्ट प्लाज्मास and they are 10 times smaller than bacteria. They are 10 times smaller than bacteria. PPLO are much smaller than bacteria. जैसे कि smallest bacteria अगर लिया अपन ने, डायलिस्टर बैक्टीरिया, it is the smallest known bacteria, सबसे छोटा बैक्टीरिया। ये भी एमसीक्यू में पूछेंगे, which bacteria is the smallest known bacteria, तो सबसे छोटा बैक्टीरिया है डायलिस्टर बैक्टीरिया। This bacteria has a size of about 0.15 माइक्रोमीटर, 0.15 माइक्रोमीटर। उससे भी छोटे है देखो, 0.3, 0.5, दे आर मच स्मॉलर देन दैट बैक्टीरिया। ओके, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा, बट मैं एक रेंज बताने के लिए बोल रहा हूँ। इससे बड़े बड़े बैक्टीरिया रहते हैं, तो सबसे छोटा बैक्टीरिया, इससे बड़ा बैक्टीरिया भी रहते, डिप्लोकॉकस निमोनी, कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस, वो बैक्टीरिया तो बहुत बड़े बड़े 1 माइक्रोमीटर तक उनका साइज रह सकता है। ओके, सो दैट बैक्टीरिया आर लार्जर देन माइकोप्लाज्मा। माइको मतलब फंगस के जैसे, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा लाइक, दे विल हैव जस्ट जेली लाइक सब्सटेंस इन देयर बॉडी, दे विल हैव DNA RNA इन इट। ओके, सो बट दे विल नॉट हैव सेल वॉल, उनको सेल वॉल नहीं रहेगा, ऐसा पढ़ाने से रहेंगे बस।
ओके, सो दे लैक सेल वॉल। दो तीन बातें याद रखो पीपीएलओ के बारे में। दे लैक सेल वॉल, दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनको कुछ लेना देना नहीं ऑक्सीजन है क्या नहीं है, स्टिल दे कैन सर्वाइव। ओके, दे आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मास पीपीएलओस, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तीसरा पॉइंट, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इन वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। वायरसेस भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, तो वायरसेस को यहाँ पे डिस्कशन में मत लो। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछे तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर पीपीएलओ। लिख के रख लो, नोट डाउन दिस, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर पीपीएलओ। They are also called mycoplasmas, have a size of about 0.3 to 0.5 micrometer. They are 10 times smaller than bacteria. They are 10 times smaller than bacteria. Such as a smallest bacterium is Dialister bacterium having a size of 0.15 micrometer. Largest can be having a size of 3 to 5 micrometer. Largest bacteria का size कितना हो सकता? 3 to 5 micrometer. 7 micrometer तक जा सकते बड़े बड़े बैक्टीरिया। So they have a size of, bacteria have a size of 3 to 5 micrometers. Now some clear हुआ यहाँ तक का डिस्कशन। अपना पीपीएलओ वाला, पीपीएलओ के बारे में क्या याद रखना है, वो सबसे छोटे लिविंग सेल्स। एमसीक्यू पूछेंगे आपको कहीं ना कहीं, तो आपको बाकी के सेल्स डाल देंगे और उसमें पूछेंगे सबसे छोटे लिविंग सेल्स। ये लिविंग है, भले ही प्लाज्मा जैसे है, बिना सेल वॉल के है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, दे कैन कॉज डिसीजेस टू सर्टेन प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा ह्यूमंस में डिसीजेस करते हैं ऐसा अभी तक मिला नहीं, बट दे कैन कॉज प्लांट डिसीजेस। ब्रिंजल की डिसीज रहती, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वगैरह कुछ डिसीजेस है, दे कैन कॉज डिसीजेस टू प्लांट, दे आर पैथोजेनिक, मतलब लिविंग है। ओके, यूकैरियोट्स में अपन देखेंगे कई सारे एग्जांपल्स, उनका साइज 10 से ज्यादा ही रहता है जनरली, इतने छोटे बैक्टीरिया से बड़े से रहते वो। तो उसमें रहेगा प्लाज्मोडियम तुम्हारा, इट कॉजेस मलेरिया, इट इज मलेरियल पैरासाइट। It grows into blood, in liver. It produces various types of cells known as sporozoites, mesozoites. We will see it in 12th standard. So जो प्लाज्मोडियम नाम का तुम्हारा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से वो तुम्हारे ब्लड में आ जाता। प्लाज्मोडियम फिर ब्लड के थ्रू बॉडी में अपने को इन्फेक्शन करता और फिर तुम बीमार हो जाते, मलेरिया हो जाता। So that plasmodium has a smallest size. It has a small size of 2 micrometer. देखो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया जितना छोटा है। ये प्रोटोजोआ में आता, बहुत छोटे टाइप साइज का रहता। अमीबा की फैमिली के टाइप में प्रोटोजोआ में अमीबा जैसा। ओके, सो प्लाज्मोडियम इज 2 माइक्रोमीटर इन साइज। सिमिलरली अलगी अगर देखें तो लार्जेस्ट साइज में अगर बड़े बड़े अलगी की बात करते हैं, एसिटाब्युलारिया, इट इज यूनिसेल्युलर बट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अलगी। एक अलगी की सेल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती, एसिटाब्युलारिया। दिस अलगी वाज आल्सो एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो इस तरीके से ये सबसे छोटे हैं सेल्स, ये कुछ बड़े सेल्स है। इसी तरीके से कुछ बड़े और सेल्स में देखे तो ऑस्ट्रिच का एग अगर निकाले तुमने, एग इज नॉट द एग, इट इज द फीमेल गैमेट ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की जो फीमेल बर्ड रहेगा उसमें से ओवरी में से अगर आपने फीमेल गैमेट आइसोलेट किए, सो दैट आइसोलेटेड एग फ्रॉम ऑस्ट्रिच, इसलिए मैंने एग सेल लिखा है यहाँ पे। आप कंफ्यूज होते, एग मतलब आपके दिमाग में अंडा आता है, वो बड़ा जो जिसमें बच्चा रहता पैदा, वो अंडा बनने के पहले फीमेल गैमेट रहता, उसको मेल गैमेट मीट होता है, फिर जाइगोट वगैरह बनके एग तैयार होता है, वो पूरा एक्चुअल एग। लेकिन मैं फीमेल गैमेट की बात कर रहा। फीमेल गैमेट ऑफ ऑस्ट्रिच हैज लार्जेस्ट साइज इन दी ऑल सेल्स, अमंग ऑल सेल्स इट हैज अ साइज ऑफ 170 by 150 मिलीमीटर, नॉट नैनोमीटर, मिलीमीटर। 170 मिलीमीटर मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास जा रहा। देखो 1.7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा, वो एक इतना बड़ा दिखाई देगा, अपने आंखों से दिखाई दे सकता, इतना बड़ा एग रहता है उसको। ओके, यू कैन सी इट विथ नेकेड आईज। सिमिलरली ह्यूमन एग की भी बात अगर कर लूं यहाँ पे, ह्यूमन ओवम आल्सो हैज अ साइज ऑफ 1 मिलीमीटर। अपन आंखों से देख सकते हैं। ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में से ओवरी में से एग निकालते डॉक्टर्स, और वो आइसोलेट कर रहे एग को टेस्ट ट्यूब में रखते, साइमुलेटेड कंडीशंस बना के, यूटेरस जैसी कंडीशंस बना के, उसके अंदर वो एग अपन आंखों से देख सकते, बिकॉज इट हैज अ लार्ज साइज ऑफ 1 मिलीमीटर। ह्यूमन बॉडी की अगर डायमीटर वाइज देखे तो सबसे बड़ी सेल ह्यूमन एग है डायमीटर वाइज। लेंथ वाइज देखे तो नर्व सेल्स हैव अ लेंथ ऑफ अप टू 690 सेंटीमीटर। तुम्हारे ब्रेन से लेके पैर तक एक अखंड न्यूरॉन रह सकता, कंटिन्यूअस एक न्यूरॉन रह सकता। तुमको ये सारे सेल्स के डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम भी तुमको एनसीईआरटी में दिया है। आरबीसीज
or RBCs has a size of 7 micrometer. WBCs, neutrophils, basophils, we will see the types in blood circulation, okay, body fluids and circulation. 8 to 15 micrometer. Human worms 1 millimeter, sperm 60 millimeter, micrometer, sorry 60 micrometer. इस तरीके से साइजेस है. और प्लांट के जो फाइबर्स है सेवरल सेंटीमीटर्स तक हो सकते हैं. प्लांट के फाइबर्स जो रहते हैं, जो तुम वुड देखते वुड में व्हाइट कलर के जो लंबे लंबे लाइन दिखाई देते, दे आर द फाइबर्स, ओके. स्क्लेराइड्स, उसमें फिर पत्तियों में मेसोफिल सेल्स. ऑल दीज आर वेरियस सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. तुमको इसकी डायग्राम देखो, ये फोटो दिया है. सारे सेल्स पहले आरबीसी से, दे आर हैविंग शेप बाइकॉनकेव, डिस्क लाइक, राउंड, ओके. फिर डब्ल्यूबीसी दिया ले, उसके बाजू में तुमको दिया ले अलग अलग और सेल्स कुछ, ओके. कॉलमनर सेल्स है. देन नेक्स्ट वन इज है नर्व सेल्स है उसमें. और लास्ट में तुम्हारे को स्क्लेराइड है वगैरह कुछ दिया है. सो दी मेसोफिल सेल्स. सो दीज आर वेरियस सेल्स एंड देयर वेरियस शेप्स. तो अलग अलग शेप्स रहेंगे उनके. सो लेट्स सी सर्टेन शेप्स. ये इनके साइजेस की बात किया मैं. क्या करो, वो जो डायग्राम्स है वहां पे उनके ब्रैकेट में साइजेस लिख लो, जो डायग्राम दिया. जैसे कि आरबीसी का साइज दिया है 7 माइक्रोमीटर, वो डायग्राम में डाल दो 7 माइक्रोमीटर ब्रैकेट में. पेंसिल से लिख लो वहां पर, या पेन से लिख लो, कुछ भी करो. आपके एनसीईआरटी में नोट कर लो ये चीज. सेम डब्ल्यूबीसी का साइज नोट कर लो. ह्यूमन स्पर्म ओवम का साइज साइड में लिस्ट बना लो. नहीं तो ये सब चीजों की साइड में लिस्ट बना लो. ये एज इट इज तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए. तुमको ये याद करने की, ये सारी चीजें दिमाग में रखने की कि सबसे छोटे वायरस कौन है, सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, ओके. वैसे पीपीएलओ का साइज कितना है. तो इतनी कुछ चीजें आपको अभी से याद रखना पड़ेगी. चैप्टर फैक्चुअल है, ओके. सो दिस इज अबाउट वेरियस साइजेस ऑफ सेल्स. लेट्स सी सर्टेन शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स. There are various shapes of bacteria, there are various shapes of viruses, various shapes of human cells, plant cells, animal cells, fungal cells. कई अलग अलग shapes के ये सारे cells हो सकते हैं. The cells have diverse shapes according to their sizes, according to their functions in which they are involved. तो मैं कुछ sizes यहाँ पे आपको बताया, वैसे अभी कुछ shapes देख लेते. मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ भी लिस्ट है आपको जल्दी समझने के लिए मैंने क्या किया, जो लिस्ट बनाया है. अब इतने सारे प्रकार के सेल है, इसमें सब तो कवर होना पॉसिबल है नहीं. लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्लस जो कुछ अपने को डिस्कशन में कभी ना कभी आएंगे, ऐसे कुछ सेल्स मैंने यहाँ जमा किया हुआ है. साइजेस तो आपको उतने याद करने ही है. शेप्स देख लो. मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुमको, और उसकी डायग्राम उधर आते जाएंगी. आपको ऑटोमेटिकली उसका शेप आप पॉज करके देखते जाओ कि किस तरीके से वेरियस शेप्स हो सकते हैं. जैसे कि वायरसेस, ह्यूमन सेल्स और मैंने बैक्टीरिया 3 एग्जांपल्स लिया. प्लांट सेल्स अपन डाल देंगे एट द एंड. तो वायरसेस में राउंड शेप के वायरसेस हो सकते हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस, सी देयर, ओके. कुछ पॉलीगोनल वायरसेस हो सकते हैं, सी देयर. एनिमल वायरसेस इसमें आते हैं. कुछ रॉड शेप के वायरसेस हो सकते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी है इस शेप, टीएम रॉड शेप. तुम बोलेंगे सर ये तो स्पाइरल जैसा दिख रहा है. नो, दिस स्पाइरल इज नॉट स्पाइरल शेप एक्चुअली. इट इज द कॉइल ऑफ आरएनए एंड इट इज कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट. वायरसेस में प्रोटीन्स रहते हैं और अंदर आरएनए या डीएनए रहता. तो टीएमवी का शेप रॉड शेप है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2018 में क्वेश्चन आकर गया था. व्हाट इज द शेप ऑफ टीएमवी वायरस. इट इज गिवन इन 12th स्टैंडर्ड एक्चुअली. बट आपको अभी से पता होना चाहिए टीएमवी इज रॉड शेप. टोबैको मोज़ेक वायरस ये क्या करता है, टोबैको में बीमारी करता है, जिसके वजह टोबैको के पत्ते खराब हो जाते हैं, टोबैको का प्रोडक्शन खराब हो जाता है. पत्तियों का ही प्रोडक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तंबाकू के जो पत्ते रहेंगे वही तो तुम्हारे को इनकम देने वाले. तो ये तंबाकू के पत्ते ही नहीं आने देता और उनकी पूरी ग्रोथ डेवलपमेंट खराब हो जाती है और प्लांट कुछ ऐसा खराब सा दिखाई देता. अकॉर्डिंग ड्यू टू दिस टीएमवी अटैक. दिस डिसीज इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक डिसीज ऑफ इन टोबैको एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज टोबैको मोज़ेक वायरस. शेप क्या है इसका, रॉड शेप, ओके. नेक्स्ट अगर बात करूं, बहुत सारे मिल जाएंगे और इसके अलावा कई एग्जांपल्स, ओके. एक बैक्टीरियोफेजेस भी देख लो कैसे दिखते हैं. यहाँ पे उनका शेप किस तरीके से रहता. ऊपर पॉलीगोन जैसा उनका हेड है, नीचे उनको मकड़ी के जैसे पैर दिख रहे हैं, स्पाइडर जैसे. दे आर कॉल्ड टेल फाइबर्स, ओके. दिस इज बैक्टीरियोफेज. वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया. वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. फेज मतलब अटैक करना, इंगल्फ करना, मार देना, ओके. बैक्टीरियोफेज, सी, ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमन सेल्स में आरबीसीज देखो. सी दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी. आरबीसीज हैव अ डेफिनेट राउंड और डिस्क लाइक शेप विद बाइकॉन्केव सरफेसेस. बाइकॉन्केव सरफेस क्या रहता है,
देखो पहले तो एक इमेजिन करो राउंड पूरा डिस्क इमेजिन करो, सीडी प्लेयर जैसी तुम्हारी जो सीडी रही थी तो वो सीडी इमेजिन करो, तो वैसे 2 सीडीज इमेजिन करो। ओके, उनको आजू बाजू से ज्वाइन कर दो, बन गया राउंड शेप की ऐसी इतनी मोटी एक सेल तैयार हो गई। लेकिन क्या करो, उसको बीच में से प्रेस करो, दोनों तरफ से, ऊपर से भी प्रेस करो, बीच में से प्रेस, तो फिर क्या होगा, बॉर्डर मोटी रह जाएंगी और बीच में से जो सेंटर है वहां से प्रेस होने के बाद इस तरीके से अंदर चला जाए। जैसा कचौरी बनाते टाइम, अब खाने की चीजों पे जल्दी समझते देखो कुछ चीजें, कचौरी बनाते टाइम पर क्या होता, अगर तुम कचौरी का जो कुछ भी मैदा रहेगा उसको तैयार करने के बाद उसके अंदर जब तुम मसाला भरेंगे और उसको बंद करके उसको पूरा साइड से बीच में से प्रेस करते और साइड से बॉर्डर मोटी रखते। कच्ची कचौरी जो रहेगी वो आरबीसी रहेगी, तलने के बाद में वो स्वेल हो जाएंगे, उसको तुम जब डीप उसको फ्राई कर लेंगे तेल में, ऑयल में, उसके बाद में वो कचौरी इस तरीके से फूल जाएगी। दिस इज बाइकॉन्वेक्स, बट व्हेन द सेल इज लाइक दिस इट इज बाइकॉन्केव, ऐसा रहेगा बीच में से, दिस इज कॉन्केव, कॉन्केव, दिस इज बाइकॉन्केव, बाय मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव, दिस इज बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स आरबीसीज आर फाउंड इन कैमल, आवर आरबीसीज आर बाइकॉन्केव एंड राउंड, कैमल की राउंड एंड बाइकॉन्वेक्स, अपनी बाइकॉन्केव एंड राउंड। ओके, आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी देखो, इनके अलग अलग शेप्स देखो, अलग अलग टाइप से, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, सबके सब अलग अलग शेप्स के हैं, सबके सब अमीबॉइड मूवमेंट बताते हैं। अमीबा जैसे मतलब किस तरीके के, देखो उनका शेप कैसा है, इरेगुलर है, बिकॉज दे कैन स्क्वीज, उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कहीं भी घुस सकते, बारीक जगह से भी एंटर कर सकते हैं, तो इसके लिए अमीबा जैसे रहते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता, व्हेन दे आर अमीबा लाइक। देन कॉलमनर एपिथेलियम, देखो कॉलम जैसे सेल्स दिख रहे हैं, लंबे लंबे लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके, देन मसल फाइबर्स। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब क्या है, स्क्वायर लाइक सेल्स है, देखो टाइल्स के जैसे जमाए वाले के एक के बाजू एक, इस तरीके के सेल्स हैं। ओके, दे आर स्क्वैमस, स्क्वायर लाइक सेल्स। देन मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप, इस तरीके के रहेंगे, स्पिंडल जैसे रहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, ये रहेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस। स्मूथ मसल सेल्स आर लाइक स्पिंडल। ओके, है क्या डायग्राम में वैसे सिलिंड्रिकल है कुछ मसल, जैसे कि तुम्हारे स्केलेटल मसल्स, उनके ऊपर इस तरीके की आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, स्केलेटल मसल्स। दीज डायग्राम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, मैंने वहीं से लिया हुआ ये मसल्स के, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बोल के एक चैप्टर है, वो वाले चैप्टर में से डायग्राम्स लिया, 7th नंबर का चैप्टर है सेल के पहले, ये देखो, तो वहां पे से ये डायग्राम्स लिए हुए हैं। नर्व फाइबर्स में तुम्हारे ब्रांच्ड लॉन्ग न्यूरॉन्स, तो तुमको 10th में याद ही होंगे, लॉन्ग न्यूरॉन्स जो रहते, प्लस ये चैप्टर में भी न्यूरॉन की जो डायग्राम दे लिए। सो दीज आर वेरियस शेप्स ऑफ दिस सेल्स, लॉन्ग, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, स्पिंडल लाइक, सिलिंड्रिकल। ओके, अब बैक्टीरिया के कुछ शेप्स देख लो, 4 टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं शेप के हिसाब से। रॉड शेप बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड बैसिलस। सर्कुलर बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई, कोकस बैक्टीरिया, है क्या गोल गोल। ओके, ये चारों याद रखो, बैसिलस मतलब रॉड शेप, कोकस मतलब राउंड, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड, कॉमा जैसे दिखाई देते, एंड एटलास स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल जैसे, जैसे कि कुछ तो भी कॉइल लाइक है, ऐसे बैक्टीरिया। ये चारों तो आपको एमसीक्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। शेप्स दिया रहेंगे बैक्टीरिया के और उनके उधर मीनिंग बैक्टीरिया का नाम रहेगा। सो रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, राउंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई, विब्रियो मींस कॉमा शेप बैक्टीरिया, और स्पाइरिलम मींस स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ट्विस्टेड शेप, उनका सेल्स ऐसे धागे जैसे ट्विस्टेड रहेंगे, कॉइल लाइक शेप रहेंगे। ओके, सो दीज आर वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ प्लांट सेल्स भी है, देखो यहाँ पे किडनी शेप्ड सेल्स दिखाया है, गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा, है क्या, किडनी शेप्ड वगैरह, डम्बेल शेप्ड वगैरह, मोनोकॉट डाइकॉट में। पत्तियों के सेल्स, योर स्क्लेराइड्स बता वाले लॉन्ग, तुम्हारे को मेसोफिल सेल्स देखो कैसे पॉलीगोनल है, मेसोफिल सेल्स पॉलीगोनल। ओके, सो दीज आर वेरियस सेल्स एंड प्लांट सेल्स में इसके अलावा भी और बहुत टाइप के सेल्स रहते, अपने को वो पार्ट में जाना है नहीं। सो दिस मच इज इनफ हियर, आपको शेप्स वगैरह याद रखने के लिए। वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करके आपको शेप्स और साइज याद रखने चाहिए पड़ेंगे। कुछ आपको एमसीक्यू मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज, प्लस साइजेस आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपको एमसीक्यू बिल्कुल मिलेंगे। एनसीईआरटी में बस एक पैसेज में डिस्कशन है, बट इट नीड्स सर्टन मोर एंड देयरफॉर आई हैव गिवन मोर and do it from NCERT and from this lecture video. We'll see the methods of staining and we will see mainly gram staining in our next lecture.